Next, magnetism is another the classification of materials. The classification of materials होता है कि how we classify the materials on the basis of their magnetic properties. Classification on basis of magnetic properties means how a given substance will behave when placed in external magnetic field. Classification is say how a given material will behave. Behave when placed in external. So on the basis of magnetic properties, we will classify them. So normally तीन categories में divide करते हैं सारे substances को physics में. Diamagnetic substances, paramagnetic substances, and ferromagnetic substances. तीन categories में divide होगा. So substances are divided into three categories. पहले समझ लो कि मैं लिखवा दूंगा are divided into three categories. Diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic substances. So तीन categories होती हैं in which the substances can be classified physics में broadly. अब तीनों में फर्क क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, नॉर्मली इनकी कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होती, पर जब इनको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, they will have some dipole moment of their own, and the dipole moment will be directed opposite to the external magnetic field. कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसकी डाइपोल्स जो है उसके ऑपोजिट अलाइन होते हैं, बट इट हैज अ वेरी स्मॉल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. या आप इसको ऐसे कह सकते हो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक. तो जो वीक रिपल्शन होगी दोस आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. पैरामैग्नेटिक इसके ऑपोजिट होते हैं. पैरामैग्नेटिक में होता है कि सब्सटेंसेस जिनको हमने प्लेस किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंड दे आर वीकली अट्रैक्टेड. यहाँ तो आप कह सकते हो weakly attracted or their dipoles align weakly in the direction of external field. पैरा और फेरो में सिर्फ डिफरेंस होता है ऑर्डर का. पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दोनों केसेस में अट्रैक्शन होती है, दोनों केसेस में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की है. बट we say पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में the attraction is very weak और फेरोमैग्नेट में attraction is very strong. So ferromagnetic substances which are strongly attracted by external magnetic field, जैसे iron है, iron is very strongly attracted. तो जो strong attraction जिनमें है वो ferromagnetic, जिनमें weak attraction है वो paramagnetic, और जिनमें repulsion है they are diamagnetic. और opposite way में अगर dipoles align होते हैं magnetic field, जिस भी direction में आपने magnetic field apply किया, अगर dipole उसके opposite direction में align होते हैं, so we say it's a diamagnetic substance. But if the dipoles align in the direction of weak alignment is there, they are paramagnetic. Strong alignment is ferromagnetic. अब ऐसा होता है depending on the configuration. because हमने पढ़ा था कि atom acts as a dipole और atom की magnetic movement क्या थी? Magnetic movement of atom हमने किस फॉर्म में ड्राइव की थी? हमने शुरू में आर्टिकल क्या थे? इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, इट विल हैव इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आया था? इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन.
We say that magnetic moment is EH upon 4 pi m for a given electron. Because electron, when it moves around a circular path, electron moving around a circular path is equivalent to current loop. कि अगर मैं लेता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है which is moving around the nucleus. हमने लिखा हुआ पहले से रिवाइज करा मैं ये वाला पार्ट. If you have an electron and it is moving around a positive charge. This electron moving around a positive charge is equivalent to करंट लूप. कि इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज के आसपास मूव करेगा तो ये करंट लूप की तरह बिहेव करेगा. एंड द करस्पॉन्डिंग करंट जो होगी, करंट विल बी गिवन बाय, say I will be equals to event increase 2 pi by omega. And corresponding magnetic moment is IA. An area in which electron moves, if its electron is moving in a circular orbit of radius r, then area is pi r square. So यहाँ से हम magnetic moment निकाल सकते हैं. Now, E omega r square by E r square omega by. That means magnetic moment depends upon the angular velocity with which electron is revolving around the nucleus. अब अगर हम लेते हैं कि paired electrons है, paired electrons है तो दोनों की magnetic moment cancel out हो जाती है. फिर इस केस में मैंने लिया कि electron is moving say anti-clockwise. Corresponding current जो होगी that will be clockwise. मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या मेथड है? कर्ल द फिंगर्स. एक केस में अगर मैग्नेटिक मूवमेंट इनवर्ड्स है, सेकंड केस में मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी आउटवर्ड्स. सो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इट कम्स आउट टू बी जीरो. बट अभी के लिए आप जो याद रख सकते हो दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज ई आर स्क्वायर ओमेगा में. जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, its magnetic moment is directly proportional to angular velocity. अगर सेम ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेडियस तो उनका सेम है, रेडियस उनका सेम है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो द मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल्स आउट. अब इसके बेस पे हम सब्सटेंसेस को कैसे क्लासिफाई करें? हम लेते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस जिनमें अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो their magnetic moment is zero. This is possible only if you have paired electrons. So diamagnetic substances वो होते हैं जिसमें paired electrons होते हैं outer most shell में. Inner shells को आपको देखने की जरूरत नहीं है because वो हमेशा cancel out हो जाए. So we say that if you have paired electrons, the net magnetic moment is zero. Net magnetic moment इस case में in absence of field, the magnetic moment is zero. But जैसे ही हमने magnetic field apply किया, they will have magnetic moment which is opposite to the field applied. Diamagnetic को हम ये भी बोलते हैं कि it's a universal behavior. Universal behavior means every substance is basically a diamagnetic substance. एक क्लासीफाई कैसे करते हैं? कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ डायमैग्नेटिक है, उनको हम बोलते थे डायमैग्नेटिक. कुछ होंगे जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होंगे, तो उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक को ओवरशैडो कर जाएगा, देन वी कॉल इट अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. कुछ होंगे जो डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होंगे, सो दे विल बी कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक बिकॉज फेरोमैग्नेटिज्म ओवरशैडोज द डायमैग्नेटिक बिहेवियर. सो इसलिए डायमैग्नेटिक तो सब होते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म. इसलिए 1 मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाट diamagnetism की universal behavior कौन सा? So diamagnetic is a universal behavior. Every substance is diamagnetic. It can be only diamagnetic, it can be dia and paro, it can be dia and
Ferromagnetic. So पहले classification का लिख लो, classification of materials. Just put a heading, classification of materials. So you can write classification implies classification of material means classification of material means dividing the body, dividing the on the basis of dividing the substances on the basis of the behavior of substance, dividing the substances on the basis of behavior of substance in presence of in presence of external magnetic field, substances are classified into three categories. Substances are classified into three categories. Substances are classified into three categories. First is diamagnetic substances. First is diamagnetic substances. Diamagnetic substances are those. Diamagnetic substances are those which dwell. Diamagnetic substances are those which dwell. Weak magnetization. Which dwell weak magnetization in direction opposite to weak magnetization in direction opposite to the external magnetic field, which will weak magnetization in direction opposite to the external magnetic field. Or these are the substances which are weakly repelled. And these are the substances which are weakly repelled by external. तो अगर मैं बोलूँ diamagnetic substance है and it's placed in non-uniform magnetic field, how will it behave? It will move from weaker to stronger parts या stronger to weaker parts. अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, उसमें मैंने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस किया, तो diamagnetic will behave from stronger to weaker or weaker to stronger. It's repelled by magnetic field. तो कैसे मूव करेगा? अगर मेरे पास मैग्नेट है तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के पास स्ट्रांग होता है या मैग्नेट से दूर स्ट्रांग होता है? करेक्ट, मैग्नेट के पास स्ट्रांग होता है। हमने कहा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड, तो वो मैग्नेट से दूर जाएंगे। मैग्नेट से दूर जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्गर से वीकर जा रहे हैं या वीकर से स्ट्रॉन्गर जा रहे हैं? Stronger से weaker. So we say, you can write this. When placed in external magnetic field, when placed in external magnetic field, diamagnetic substances tends to move from. When placed in external magnetic field, diamagnetic substances tends to move from
stronger parts of the magnetic field to the weaker parts. Diamagnetic substances tends to move from stronger parts of the magnetic field to the weaker parts. For example, bring the examples show the diamagnetic field. For example, bismuth, copper, zinc, gold, प्लस आप कोई भी गैस का एग्जांपल दे सकते हो O2H2N2 all are diamagnetic. So copper, bismuth, zinc, gold, etc. are diamagnetic substances. These are the substances which are weakly repelled by magnetic field. कैसे वो अभी हम इसकी अभी तो हम सिर्फ लिख रहे हैं ना क्या होते हैं अब इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे और मतलब एक्सप्लेनेशन की व्हाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड या व्हाई डाइपोल मोमेंट्स आर ओरिएंटेड ऑपोजिट टू द फील्ड वो इनका आएगा कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म तो अभी इसके बाद करेंगे पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेना तीनों की फिर कॉजेज आएंगे कि कॉज क्या डायमैग्नेटिक क्यों होता है पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है या फेरोमैग्नेटिज्म क्यों होता है तो कॉजेज में आएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब तक मतलब आपके पास अगर नॉर्मल कॉपर का पीस है तो इट इज नॉट अ मैग्नेट नॉर्मली एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी मैग्नेट नहीं होता सिर्फ ये होता है कि कुछ सब्सटेंस है जैसे नॉर्मल आयरन का पीस है आयरन का पीस भी अगर आप लोगे तो इट्स नॉट बिहेविंग एज इट्स नॉट हैविंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड पर आयरन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने एक बार ही मैग्नेटाइज कर दिया देन इट कैन बिहेव एज अ मैग्नेट वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज नहीं करता नॉर्मली जो सब्सटेंसेस होते हैं ना मतलब ये जो पैरा एंड डाया दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है आपने जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो डाइपोल सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए या ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए एक बारी पर जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करोगे तो दे लूज देयर प्रॉपर्टी ऑल्सो उनकी फिर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगी दे आर नॉट एबल टू सस्टेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सिर्फ फेरोमैग्नेट्स हैं जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सकते हैं कि आपने एक बार अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया एंड दे स्टार्ट हैविंग देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड तो उसके बाद जब आप एक्सटर्नल फील्ड हटा भी लेते हो तो दे स्टिल बिहेव्स एज मैग्नेट्स समझ में आया so you can write this again paramagnetic substances paramagnetic substances paramagnetic substances are those paramagnetic substances are those which shows peak magnetization in direction of external magnetic field. It shows weak magnetization in direction of external magnetic field. Or substances which are weakly attracted. Substances which are weakly attracted by the external magnetic field. इनको अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करें तो स्ट्रॉन्गर से वीकर या वीकर से स्ट्रॉन्गर वीकली अट्रैक्टेड तो मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करेगी अगर मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी तो वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएंगे सेकेंड राइट व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड when placed in non-uniform magnetic field they are weakly attracted from
weaker to stronger parts of magnetic field. They are weakly attracted from weaker to stronger parts of magnetic field. For example, manganese, aluminum, platinum, etc. आपको नॉर्मली वो डायमैग्नेटिक में तो आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। फेरो का एग्जांपल वो सबसे ज्यादा पूछते हैं बिकॉज फेरोमैग्नेटिक से 5 सब्सटेंसेस भी होते हैं, मतलब 5 एलिमेंट्स और उनके अलॉयज। 3 तो स्टैंडर्ड सबको याद होते हैं, आयरन निकल कोबाल्ट। कि आयरन निकल कोबाल्ट ऑल 3 आर फेरोमैग्नेटिक। 2 और सब्सटेंसेस होते हैं, गैडोलीनियम एंड डिस्प्रोसियम। These lines in the lanthanide and actinide series. So फेरोमैग्नेटिक के 5 ही एग्जांपल होते हैं, मतलब यहाँ तो ये 5 प्योर एलिमेंट्स, यहाँ इन्हीं के अलॉयज। Last rate ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. Substances which are substances substances which shows strong magnetization. Substances which shows strong magnetization in direction of substances which shows strong magnetization in direction of external magnetic field, substances which shows strong magnetization in direction of external magnetic field. Then placed in non-uniform magnetic field, it quickly moves from, because strong attraction है तो बहुत जल्दी move करते हैं, they quickly move from weaker to stronger parts of magnetic. An example are iron, nickel, cobalt, gadolinium, and dysprosium. Gadolinium का सिंबल होता है GD, dysprosium is की भाई। आयरन निकल, हाँ जी, फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं फेरोमैग्नेट है ना, फेरोमैग्नेट तो अट्रैक्ट होंगे और बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। मतलब जैसे आपने आयरन का पीस रखा, मैंने ऐसे लुबी से मेरे पास एक मैग्नेट है और इसके पास मैंने आयरन का पीस रखा है, तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल? अट्रैक्ट होगा। अगर ये अट्रैक्ट होगा मतलब ये किधर मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेट के पास। तो मैग्नेट के पास तो फील्ड स्ट्रांग है ना, तो वीकर से स्ट्रॉन्गर मूव करेगा ना ये। सो पैरा और फेरो दोनों वीकर से स्ट्रॉन्गर जाते हैं, बिकॉज उस तरफ जाते हैं जिधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, क्योंकि इन्होंने अट्रैक्ट होना है फील्ड की तरफ। और जो डाया है वो रिपेल होता है, तो वो स्ट्रॉन्गर से वीकर जाता है। क्लियर है? So iron, nickel, cobalt, gadolinium, dysprosium, and their alloys. And their alloys. इसके नीचे नोट में लिख लो एक पॉइंट, नोट में एक पॉइंट लिख लो। Can write diamagnetism is a universal behavior. Diamagnetism is a universal behavior, which implies that diamagnetism is a universal behavior
which implies that all substances are diamagnetic. But if in addition to, if in addition to diamagnetic behavior, para and ferromagnetic behavior is also there. But if in addition to diamagnetic behavior, para and ferromagnetic behavior is there, diamagnetism gets overshadowed. Diamagnetism gets overshadowed. यहाँ तक समझ में आया? इसमें कुछ पूछने वाला है तो पूछ लो इतने पार्ट में। इसमें अगर कुछ डाउट है जो अभी तक किया है। मतलब जो रिपेल हो रहे हैं सिर्फ वो डायमैग्नेटिक है। अगर वो साथ में रिपेल के साथ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं तो इसे अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन रिपल्सिव फोर्स की पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो फिर हम लेते हैं कि डायमैग्नेटिज्म ओवरशैडो हो गया। कैसे? मतलब दो प्रॉपर्टीज हो गई ना कि डायमैग्नेटिज्म के कारण उसको रिपेल होना चाहिए था और फेरोमैग्नेटिज्म के कारण अट्रैक्ट होना चाहिए था, तो नेट एक ही पता चलेगी। इसलिए बिकॉज वो नेट क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है तो हम उसको फेरोमैग्नेट बोल देते हैं, और अगर पैरामैग्नेट है तो नेट अट्रैक्ट हो रहा है तो इसलिए पैरामैग्नेट बोल देते हैं। बट अगर अट्रैक्शन है ही नहीं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है ही नहीं, तो फिर वो सिर्फ रिपेल ही हो रहा है। तो इसलिए अट्रैक्शन अगर हो रही है तो इसका मतलब यहाँ तो पैरा है या फेरो है। डायमैग्नेटिज्म है पर वो इतना वीक है कि उसका पता नहीं चल रहा कि रिपल्शन भी थी पर नेट अट्रैक्शन थी। नेक्स्ट इज cause of diamagnetism. Cause of diamagnetism. Cause of diamagnetism. Cause of diamagnetism explain करने के लिए we use a theory which is also referred as electron theory. Sometimes it's also called Lenzer's theory. Lenzer's theory of diamagnetism. We take a case of simple paired electrons. We say that paired electrons अगर हमारे पास होते हैं so their atomic orbitals are always such that in the absence of external magnetic field, the net magnetic moment is zero. अब बेसिकली 3D में मूव करते हैं बट हम उसको सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए लेते हैं कि अगर मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज और एक एंटीक्लॉकवाइज, और मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसमें हम देंगे क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन दोनों में, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो करंट विल बी क्लॉकवाइज, और इसमें करंट विल बी दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑफ सेम एटॉमिक ऑर्बिटल लिया
अगर मैंने सेम एटॉमिक ऑर्बिटल लिया तो रेडियस सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? क्यों? अभी हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। अगर मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, मैंने कहा सेंटर में न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कैसे भी करे, the force between electron and nucleus is attractive। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, दिस इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था कि अगर मैं न्यूक्लियस का चार्ज जेड भी ले लो, जेड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। कुछ भी हो तो वो भी सेम, ये रेडियस सेम, and this provides the centripetal force mi omega square। Now because we say that दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट का हमने फॉर्मूला भी मैंने पीछे शो किया था, हमने पहले क्लास में ड्राइव किया हुआ। मैग्नेटिक मूवमेंट इज ई आर स्क्वायर ओमेगा वेट। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए रेडियस और ओमेगा सेम है, दैट मीन्स इनके कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रही है दैट इज सेम। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो ऑपोजिटली डायरेक्टेड होगी। अगर मैं इस केस में पूछूं, फर्स्ट केस में मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, इनवर्स या आउटवर्ड्स? कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव्स यू मैग्नेटिक मूवमेंट इनवर्स। इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट इनवर्स है और इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट आउटवर्ड्स है। सो दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। दैट मींस जब तक मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही है दैट विल बी जीरो। क्लियर इतना? अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं किसी एक डायरेक्शन, मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इनवर्स, पहले था सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही, तो और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया इनवर्स, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, इधर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड्स। फर्स्ट केस में मैं तो बताऊं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वी डाउनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है इस केस में, वी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है, अगर वी क्रॉस बी टुवर्ड्स राइट आ रहा है तो फोर्स किस डायरेक्शन में, फोर्स इधर लगेगी एफ एम। ये समझ में आया स्टेप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब भी लग रही है एफ ई। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को देखो वी अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इस तरफ और मैग्नेटिक फोर्स इसमें बी क्रॉस बी आ रहा है हमारा इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स इसके ऑपोजिट।
एफई भी इधर है। इन दोनों डायग्राम्स में देख के बताओ इलेक्ट्रो सेंट्रीपिटल फोर्स किस केस में बढ़ गई, फर्स्ट केस में या सेकेंड केस में? सेकेंड में। फर्स्ट केस में इलेक्ट्रो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो गई, एफ ई माइनस एफ एम। प्लस अगर मैं इधर पूछूं ना, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, से एफ ई एफ एम ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, एफ ई प्लस एफ एम। अब इस फॉर्मूला को देखें, अगर सेंट्रीपिटल फोर्सेस एम आर ओमेगा में, मास और रेडियस तो चेंज हो नहीं सकता, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर बढ़ जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट हमने अभी किया था, मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो हम लेंगे कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ी तो मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ गई। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी चेंज किया, डायरेक्शन सेम रही, डायरेक्शन सेम रही। पहले था इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी है, इसकी भी है। अब चेंज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई एम प्लस डेल्टा एम, क्योंकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई है, और इधर सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट एम माइनस डेल्टा एम। इधर डायरेक्शन कौन सी थी, आउटवर्ड्स, और इधर डायरेक्शन इनवर्ड्स। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी और किस डायरेक्शन में है, ये एम प्लस डेल्टा एम आउटवर्ड्स, एम माइनस डेल्टा एम इनवर्ड्स, तो नेट कितनी हो गई, लार्जर माइनस स्मॉलर, डायरेक्शन सेम इज लार्जर, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट टू डेल्टा एम, टू डेल्टा एम, उसकी डायरेक्शन कौन सी, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आई मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, क्रॉस इनवर्ड्स, मैग्नेटिक मूवमेंट उसके ऑपोजिट आ रही है, इसलिए हम लेते हैं कि कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगी, या आप कह सकते हो ये सब्सटेंसेस रिपेल होंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट जा रही है। समझ में आया, देखो ये ध्यान से कंसेप्ट सारा समझ में आया कि एक बार रिपीट करो फटाफट। रिपीट करके हमने लिया कि पहले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिए और कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, तो उनके कारण जो करंट फ्लो कर रही थी उसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट थी, एक केस में करंट क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज है। पर क्योंकि वो एक ही अभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, सिर्फ एक ही फोर्स लगती है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स लग रही है तो इसे दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे और उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम होगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑपोजिट थी तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कम्स आउट टू बी जीरो। ये तो केस हो गया जब अभी हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, बट अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स करके भी कर सकते थे, सारा सेम आ रहा, इनवर्ड्स अप्लाई किया तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फोर्स जो एक थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट एक थी, एक केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में एक थी। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नेटिक फोर्सेस
क्यों वी क्रॉस बी? तो चार्ज इस केस में माइनस ही है, तो माइनस ही इंटू वी क्रॉस बी। तो आप वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लोगे और उसके ऑपोजिट फोर्स हो जाएगी, बिकॉज नेगेटिव साइन है यहाँ पे, माइनस ही इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स एक्ट करती है वो वी क्रॉस बी के ऑपोजिट। तो इस केस में वी क्रॉस बी आउट इधर था टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फोर्स राइट। सिमिलरली इसमें जिसमें नेट सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ी, इसमें जैसे एफ ई प्लस एफ एम हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाएगी। पहले अगर एम की, नाउ इट विल बी एम प्लस डेल्टा एम। सिमिलरली इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट पहले एम की, अब एम माइनस डेल्टा एम। दो मैग्नेटिक मूवमेंट्स आई, पहले वो कैंसिल आउट हो रही थी क्योंकि सेम थी। नाउ इट विल बी लार्जर माइनस स्मॉलर वेक्टर, एम प्लस डेल्टा एम माइनस दिस m minus delta m. So net magnetic movement is 2 delta m and its direction is opposite to the external magnetic field. तो कभी भी आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रखोगे तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगी दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। दैट्स व्हाई सब्सटेंसेस शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर है इतना? ये डायग्राम बना लो, फिर इसको लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म या लेंजेविन्स थ्योरी या कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म, कुछ भी पूछे यही एक्सप्लेन करना है आपको। सेकंड राइट। सिर्फ डायग्राम्स बनाना और कुछ मत लिखना, द फोर्सेस मार्क कर लो और डायग्राम्स बना लो। सेकंड राइट। कंसिडर 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 the simplest case of paired electrons, like in the case of helium atom. Simplest case of paired electrons, like in the case of helium atom. They revolve around the nucleus. They revolve around the nucleus in atomic orbitals. They revolve around the nucleus in atomic orbitals in such a way that they revolve around the nucleus in atomic orbitals in such a way that their net magnetic moment is zero. As shown in figure. In the absence of external magnetic field, as shown in figure, in the absence of external magnetic field, only electrostatic force
provides the centripetal force. Only electrostatic force provides the centripetal force. Thus, radius and angular velocity of both the electrons is same. Thus, radius and angular velocity of both the electrons is same. Radius and angular velocity of both the electrons is same. Thus, magnetic moment. Bracket में formula मतलब. Thus, magnetic moment. Bracket we can write this formula. M is equal to ER square omega by. Thus, magnetic moment of both the electrons will have same magnitude but opposite direction. And net magnetic moment is zero. And net magnetic moment is zero. Fixed paragraph here. But if external magnetic field is applied as shown, perpendicular to the plane of revolution, in addition to electrostatic force, हाँ जी, to the plane. No, perpendicular to plane of revolution, then in addition to electrostatic force, thus in addition to electrostatic force, magnetic force also acts. In addition to electrostatic force, magnetic force also acts. If electrostatic and magnetic force are in opposite direction. If electrostatic and magnetic force are in opposite direction, the centripetal force will decrease. Thus, angular velocity decreases. And its magnetic moment. Angular velocity decreases and its magnetic moment increases from m to m minus delta n. Similarly, second electron for second electron, Fe and Fm are in same direction. Thus, magnetic moment will increase. M plus delta m
due to increase in centripetal force. Due to increase in centripetal force. Thus, net magnetic moment as shown in figure is 2 delta m and its direction is opposite to the external magnetic field applied. अच्छा इसमें अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता है जो एटॉमिक मोशन होती है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस नॉर्मली हम लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो मतलब न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं है उनकी स्पीड बढ़ जाती है अगर टेम्परेचर बढ़े एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स में भी चेंज आता है तो मतलब न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहे हैं तो उसमें चेंज आएगा टेम्परेचर के साथ स्पीड में तो इसमें लास्ट में लिख लो diamagnetic behavior is independent of temperature of the substance. Diamagnetic behavior is independent of temperature of substance. बस आगे जाके जब हम फिर पैरा और फेरो पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट होगा अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स हम लेते हैं वो ब्रेक कर जाती है बिकॉज अगर आपने अलाइन कर दिया टेम्परेचर इंक्रीज किया कोलिजन होगी कोलिजन से अलाइनमेंट ब्रेक करेगी तो एक डायमैग्नेटिक ऐसा बिहेवियर है विच इज फाउंड पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी वजह से क्वांटम मैकेनिकल होती है और क्लासिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता तो फिर से डायमैग्नेटिक बिहेवियर के लिए याद रखना जरूरी है कि डायमैग्नेटिक बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस हाँ जी आउटर मोस्ट शेल आयनाइज कर सकते हैं बट बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन ना क्लासिकल इतनी होती नहीं है रीजन बिंग हमारे दिमाग में जो मेंटल पिक्चर बनती है हमेशा कि यू हैव इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस या जिससे हमने एक्सप्लेन भी किया बेसिकली बोहर्स मॉडल की हेल्प लेके क्योंकि बोहर्स मॉडल खुद ही गलत है एंड वी कैन ओनली टॉक इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शंस जो अपने स्टूडेंट्स वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से तो मतलब क्योंकि हमारी बेसिक थ्योरी जिससे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वही पूरी सही नहीं है तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता कि आयोनाइजेशन के कंसेप्ट को लेके बट इसलिए हम डिटेल में नहीं जाते हम सिर्फ इतना याद रख लेते हैं कि डायमैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर क्योंकि बेसिकली मैंने सारा अगर आप देखो तो बोर्स मॉडल ही गलत था उसी के बेस पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था सब वो 12th के लेवल पे ये एक्सप्लेनेशन होती है आगे जाके हम इसकी एक्सप्लेनेशन को चेंज कर देते हैं बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसको ये पढ़ के देख लेना कल करते हैं फिर इसके आगे पैरा एंड फेरो का क्लास